ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد میرے معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے، اللہ کے کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی. اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک حضور جان جانا جان کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات حدیث مبارکہ میں موجود ہیں. آئیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے ایک آیت کا بھی کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفاروں پر بڑے شدید ہیں، اپنوں کے لیے بڑے رحم دل ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ کفاروں پر بڑا غضب کرنے والے ہیں، بڑا غصہ کرنے والے ہیں. میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، اس آیت مبارکہ کے اس جز کی جب تفاسیر کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو کفاروں پر شدید ہیں اس سے مراد کوئی اور ہستی نہیں بلکہ خلیفہ دوم، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جی ہاں، اپنوں کے لیے بڑے شفیق تھے، بڑے رحیم تھے، لیکن کفار کے لیے دو دھاری دار تلوار تھے. کفار کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں، جو اللہ کے رسول کا نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جی ہاں، آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا انوکھا ہے. عام الفیل کے 13 سال بعد، عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھیوں والا سال. اب یہ ہاتھیوں والا سال کیا ہے؟ دراصل پہچان کے لیے
یہ ایک واقعہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے گھر کو ڈھانے کے لیے کفار ہاتھیوں پر آئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل کو بھیجا، اور ابابیل کے منہ کے اندر کنکر تھے، اس کنکر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھیوں کو اور ہاتھیوں والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ 13 سال بعد جب یہ واقعہ ہوا، اس کے 13 سال بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ پیدائشی مومن نہیں تھے، کافر کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسلام ان کی جھولی میں ڈالا۔ وہ کیسے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی اللہ کے حضور، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو طاقت عطا فرما، یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ عمر بن خطاب تو عمر فاروق اعظم ہی ہے، عمر بن حشام یہ ابو جہل ہے، کیونکہ یہ وہ دو شخصیت تھی جو مکے کے اندر قداور شخصیت تھی کہ ان کے اسلام لانے کی وجہ سے بے شمار قبائل اسلام لے آتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا قبول کی، اور اسلام کی یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں۔ کفار کا آپس میں مشورہ چل رہا تھا۔ نور الابصار اور نزہۃ المجالس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ کفار یہ مشورہ کر رہے تھے کہ معاذ اللہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس کے اندر اتنی جرت، کس کے اندر اتنی طاقت، کس کے اندر اتنی بہادری کہ وہ یہ کام کر بیٹھے؟ لیکن حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے سے پہلے بھی بہادر مشہور تھے، جرت ان کا وصف تھا۔ حضرت عمر نے کہا میں لاؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب ابھی ایمان نہیں لائے اور ہاتھ میں تلوار لیے جانب منزل جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر جب آئے تو وہاں پر دیکھا کہ حضرت حمزہ اور دیگر اصحاب موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آگے کہاں کا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا، یعنی عمر نے کہا کہ معاذ اللہ میں پیارے آقا کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عمر، تو پیارے آقا کو شہید کرنے کی بات کرتا ہے، یہ تو بعد میں کرنا، پہلے جا کر اپنے گھر کی تو خبر گیری لے لے، اپنے گھر میں تو جا کر خبر گیری لے، تیرا بہنوئی اور تیری بہن وہ مشرف و اسلام ہو چکے گے، اسلام لا چکے گے۔ اب عمر کا غصہ اور مزید بڑھ گیا کہ میں تو یہاں پر کیا ہے، سپہ سالار کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، اور حال یہ ہے کہ یہ اسلام کی آگ، معاذ اللہ اسلام کی آگ جو وہ سمجھتے تھے اسلام لانے سے پہلے، یہ تو میرے گھر میں لگ چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر غصے سے جاتے ہیں اور غصے سے جا کر بہن کا گھر کا دروازہ دستک دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب جب دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ دراصل جب دروازہ کھلتا ہے بہن پر غصے ہوتے ہیں اور غصے ہو کر کہتے ہیں کہ دروازہ کھلنے میں تاخیر کیوں ہو گئی ہے، تو بہن کہتی ہے کہ غصہ نہ کرو، بتاتی ہوں کہ میں نے دروازہ کھولنے میں تاخیر کیوں کی ہے۔ دراصل میں رب کا قرآن پڑھ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں رب کا کلام پڑھ رہی تھی۔ اب حضرت سیدنا عمر اور غصے میں آ گئے۔ حضرت عمر کو ان کی بہن نے کہا پہلے قرآن سن تو لو،
कैसा पाकीज़ा कलाम है, कैसा लारेब कलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कैसी चाशनी सी रखी है, इसमें कैसी मोहब्बत सी रखी है, जो पढ़ता है इसका होकर रह जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत उमर के सामने बड़ा मुख्तसर कर बीच में से बहुत सी बातें मैं हज़फ कर आपके सामने कबूल इस्लाम की तरफ लेकर आता हूँ। हजरत उमर के सामने बहन तिलावत करती है, अल्लाह अकबर कबीरा। वो है ना एक मशहूर मारूफ हमद, बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलामे पाके खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उमर कुरान सुन रहा है, यहाँ पर कुरान के वर्क तब्दील हो रहे हैं, लेकिन असल में कुरान के वर्क नहीं पलटे जा रहे, बल्कि उमर के दिल को पलटाया जा रहा है। उमर के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को दाखिल किया जा रहा है, इस्लाम की चाहत को दाखिल किया जा रहा है। क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह के हबीब ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब। ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। अब वो दौर आने वाला है। अब यहाँ पर दिल मुनकलिब होता गया, यहाँ पर सफ़े पलटते रहे, यहाँ दिल पलटता रहा। अब हजरत उमर कहते हैं कि मुझे भी सरकार की बारगाह में ले चलो, मैं भी सरकार के कदमों पर कायम होकर कलिमा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही हजरत उमर को ले जाया जाता है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वहां मौजूद होते हैं। हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सरकार के चचा है, वो खड़े होते हैं, तलवार निकाल लेते हैं। तलवार निकाल कर जब ये जुमला कहते हैं कि अगर आज उमर गलत इरादे से आया है तो मेरी तलवार के वार से वो बचे नहीं सकेगा। नबी पाक ने फरमाया, ऐ चचा जान, अपने आप को थोड़ा सा धीरा कीजिए, चचा जान तलवार को रख दीजिए। गोया मैं अपने जुमलों में कह रहा हूं कि आज उमर आ नहीं रहा, उमर को लाया जा रहा है। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब। अब तो दुआ की कबूलियत का वक्त। ए अल्लाह, उमर को इस्लाम की रौनक अता फरमा, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस कदावर शख्सियत के जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमाए, इस्लाम को उरूज अता फरमाए, इस्लाम को बुलंदियां अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं ये कहता हूं कि थोड़ी देर पहले वही उमर जो जान लेने के दर पर था, लेकिन अब क्या है, ऐसा वक्त ने रुख पलटा है कि अब वो जान लेने के लिए नहीं बल्कि जान देने वाला बनकर आ रहा है, बल्कि अब वो सरकार के कदमों पर जान निछावर करने वाला बनकर आ रहा है। सरकार की कदमों में तलवार डालता है और तलवार डालकर कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलिमा पढ़वाइए और अपने दामन से वाबस्ता कर लीजिए। इस तरीके से हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम कबूल हुआ। और फिर इस्लाम जब कबूल हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया ने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी की ये दुआ कैसे कबूल हुई कि अल्लाह इस्लाम को बुलंदियां अता फरमा, इस्लाम को इज्जत अता फरमा। जब ईमान कबूल किया ना, प्यारे आका की बारगाह में आए और आकर कहे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं? प्यारे आका ने फरमाया, क्यों नहीं? तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर हम ये छुप छुप कर इबादत क्यों करते गए? चले ऐलानिया तौर पर इबादत करते हैं। 2 सफ़े बनाई गई, 2 सफ़े चीखा। मक्के में अब अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने का वक्त आ गया है। क्यों? क्योंकि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब उमर इस्लाम लेकर आ गया है। अब कोई भी छुप कर इबादत नहीं करेगा। 2 सफ़े बनाई जाती हैं, एक के सिपह सालार बनते हैं हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक के सिपह सालार बनते हैं हजरत सैयदना उमर। और आपका एक लक़ब है फारूक आज़म, आपका एक लक़ब है फारूक आज़म। फारूक का मतलब क्या है? फर्क करने वाला, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला कि क्या हक है और क्या गलत है। हजरत उमर ने जब ये कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं है? प्यारे आका ने फरमाया, क्यों नहीं? जब 2 सफ़े बनाई गई और फिर जब मक्के की गलियों के अंदर जब ये सदा बुलंद हुई कि
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ صدا بلند ہوئی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، فسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاروق یومئذ لأنہ ظہر الاسلام وفرق بین الحق والباطل۔ اس دن اللہ کے نبی نے حضرت عمر کا ایک لقب ارشاد فرمایا، وہ لقب کیا تھا؟ فاروق، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے کہ فاروق نے حق اور باطل کے درمیان سب کے سامنے فرق کر کر بتا دیا۔ جب سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب پڑا، کیونکہ یہ امام الانبیاء نے لقب عطا فرمایا، اور پھر جب مکے سے مدینے ہجرت کر رہے تھے نا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، نبی پاک کے فرمان پر ہر چیز نبی پاک کے فرمان پر کی جاتی تھی۔ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ محبت کر کر دکھائی، وہ عقیدت کر کر دکھائی کہ دنیا اش اش کر دینے رہ گئی کہ یہ حقیقت، یہ حقیقی محبت ہوتی ہے۔ اور پھر جب ہجرت کا موقع آیا، مکے سے مدینے کی طرف گئے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالی، اور تلوار نکالنے کے بعد مکے کی گلیوں میں گشت لگایا، مکے کی گلیوں میں گشت لگایا، اور یہ جملے ارشاد فرمائے کہ جو اس کے لیے تیار ہو کہ اس کی ماں اسے روئے، یعنی اگر وہ چاہتا ہے کہ عمر کی تلوار سے اس کی گردن جدا ہو جائے تو آج آئے وہ عمر کے ساتھ ایک ایک ہاتھ ہو جائے، پتا چلے گا کہ جب عمر کیا تھا، باطل فرقوں میں بھٹک رہا تھا، جب بھی بڑا کیا طاقتور تھا، آج اسلام نے اس کو مزید طاقتور بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کی گلیوں میں یہ فضا گجائی، کیا جو اس کے لیے تیار ہو کہ اس کی ماں اسے روئے، اس کے بچے یتیم کر دیے جائیں، بیوی کو بیوہ کر دیا جائے، وہ میدان میں میرا مقابلہ کرے۔ جب یہ جملے مکے کی گلیوں میں گونجے نا تو ایک سناٹا چھا گیا، کیونکہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ عمر کا مقابلہ کر سکے۔ کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا القابات ارشاد فرمائے، وہ بڑا جرأت۔ ارے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو کتاب میں یہ بھی ملتا ہے کہ کافر تو کافر، اگر شیطان بھی سامنے آ جاتا تھا نا، حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوتا تو شیطان بھی اپنا راستہ پلٹ دیا کرتا تھا۔ اتنا دبدبا تھا، اتنا مرتبہ تھا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت عمر فاروق اعظم کے جلال کے حوالے سے پتہ ہی کیا ارشاد فرمایا؟ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان ہے کہ جب عمر جلال میں ہونا، جب عمر جلال میں ہو تو اس سے بچا کرو، کیونکہ اس وقت عمر کا خدا بھی جلال میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر کا جلال ذاتیات پر نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق، ایک یہودی اور ایک منافق کسی فیصلے کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق و امین تھے، حق فیصلہ فرمانے والے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، جو فیصلہ ہوتا تھا وہ فیصلہ فرماتے تھے۔ منافق ظاہراً تو مسلمان تھا لیکن دل کے اندر کیا ہے؟ منافقت پیدا کیا ہوا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کافر سے بدتر منافق ہوتا ہے، کافر سے بدتر منافق ہوتا ہے۔ کیوں؟ کافر ظاہری نقصان پہنچائے گا، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ دشمن سے زیادہ بدتر تمہارے لیے وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ کیوں؟ دشمن کا پتہ ہے کہ دشمن دشمنی میں آ کر تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تم کیا ہے اس کے وار سے بچنے کی کوشش کرو گے۔ لیکن منافق دکھتا اپنا ہے لیکن اپنا دکھتے ہوئے کیا ہے؟ اپنوں پر وار کرتا ہے۔ اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب ہمارے ساتھ دغا بازی کر بیٹھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب منافق اور یہودی کا فیصلہ
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दलाइल सुनने के बाद फैसला यहूदी के हक में फरमा दिया और फरमाया कि यहूदी इस फैसले में हक पर है, लेकिन मुनाफिक ने नबी पाक की बात ना मानी। मुनाफिक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी। अब वो मुनाफिक इस फैसले को लेकर हजरत उमर की बारगाह में चला गया। हजरत उमर की बारगाह में जब गया तो किसी ने बताया, ए उमर, ये फैसला इमामुल अंबिया की बारगाह से होता हुआ आया है। हजरत उमर ने पूछा कि किसके हक में फैसला सुनाया है? फरमाया कि उमर हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला सुनाया है। अब उमर ने दूसरी बात ना सुनी, नबी ये पाक से मोहब्बत देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा, कमरे में जाते हैं, अपनी मयान से तलवार निकालते हैं, मयान से तलवार निकालने के बाद उस मुनाफिक का सर कलम कर देते हैं। कोई बात नहीं सुनते, वो बस ये कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह का नहीं वो हमारा है, जो रसूलुल्लाह का नहीं वो हमारा नहीं। जिसको शायर ने इस अंदाज में भी लिखा है कि उमर ने तन से जुदा कर दिया था सर जिसका, वो अपना है कि पराया हुजूर जानते हैं। नबी पाक से मोहब्बत जो है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, नबी पाक से चाहत सबसे बढ़कर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी के सदक़े हमें क्या है, ईमान मिला है, इसी के सदक़े हमें कुरान मिला है, इसी के सदक़े हमें जन्नत मिलेगी, इसी के सदक़े हमें जन्नती नेमतें मिलेंगी। तो नबी पाक की मोहब्बत जिंदगी का उसूल है, असल है। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और फिर ये भी शायर ने कहा कि उमर ने तन से जुदा कर दिया था सर जिसका, वो अपना है कि पराया हुजूर जानते हैं कि नबी का फैसला ना मानकर ये जास गया, मिजाज उमर का है कैसा हुजूर जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल से भी अल्लाह अकबर कबीरा। आज कुछ लोग उठते हैं और उठकर माज़अल्लाह अहले बैत अतहार की मोहब्बत में इस तरीके से बकवास करते हैं कि हजरत उमर तो क्या है, प्यारे आका की आल से मोहब्बत नहीं करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा? नबी पाक के रोजे पर जाते, नबी पाक के रोजे पर जाते, लेकिन हाजिरी देने के लिए नहीं जाते। किस वजह से? बुग़्ज़ उमर दिल में इतना उजागर किया हुआ है, क्योंकि नबी पाक के रोजे के हमरा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रोजा मुबारक है। वो इस बुग़्ज़ की वजह से प्यारे आका के रोजे का दीदार करने के लिए नहीं जाते। बुग़्ज़ उमर इतना कूट कूट कर भरा हुआ है। हमने देखा है मस्जिद नबवी के बाहर खड़े होकर क्या है वो रोजे रसूल पर सलाम पेश करते गए, लेकिन जुर्रत नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मुझे ये मोहब्बत वाली बात याद आ जाती है कि जिसके दिल में उमर की मोहब्बत होगी सरकार उसे कबूल फरमाते हैं। अपने दर पर भी उसी को बुलाते हैं कि जिसके दिल में असहाबे रसूल की मोहब्बत होगी, अहले बैत अतहार की मोहब्बत होगी। आज माज़अल्लाह कहते हैं कि हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अहले बैत अतहार से मोहब्बत नहीं थी। मैं आपको सुनाता हूँ, अगला महीना आ रहा है इंशाअल्लाह, अहले बैत अतहार का तज़किरा भी हमने सहाबा का भी जिक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत सैयदना उस्मान गनी का भी जिक्र किया। जब उनका यौम आया 18 दिल-हिज्जतिल हराम यकुम मुहर्रमुल हराम, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब खलीफा सानी, खलीफा दुय्यम, खलीफा दोम हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम, और जब अहले बैत अतहार का भी तज़किरा करेंगे तो इंशाअल्लाह गजबज कर करेंगे। लेकिन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अहले बैत अतहार से मोहब्बत कैसी थी, अल्लाह अकबर कबीरा। एक मर्तबा की बात है, एक जंग में फतह नसीब हुई। जब फतह नसीब हुई, माले गनीमत आया, माले गनीमत आया। जब माले गनीमत मस्जिद नबवी की चटाई पर बिछा दिया गया, गालिबन मदाइन को फतह किया गया था। जब माले गनीमत को चटाई पर बिछाया गया, एक शख्सियत जिसे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, वो खड़े होते हैं, खड़े होकर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहाबी की जो ये वाकया है, ये उनकी खिलाफत का वाकया है। अमीरुल मोमिनीन थे,
अब हजरत सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, खड़े होकर कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये जो माल गनीमत में मेरा हिस्सा है वो मुझे अता फरमा दीजिए। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु 1000 दिनार उस माल गनीमत में से इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पेश फरमाते हैं, कबूल फरमा लेते हैं। अब बारी आती है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरा हिस्सा भी मुझे अता कर दीजिए। इमाम हुसैन को भी 1000 दिनार दिए जाते हैं। अब हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब के बेटे वो खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि या अमीर अल मोमिनीन, मेरा भी हिस्सा दे दीजिए माल गनीमत में से। हुक्म दिया जाता है 500 दिनार आप इनको दे दीजिए। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का शहजादा जब ये सुनता है कि 500 दिनार, कहा ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने तो इमाम हसन से, इमाम हुसैन से ज्यादा जंगों में शिरकत की है, मैंने तो रसूलुल्लाह के साथ भी जंग की है, ये फिर क्यों फैसला इमाम हसन और इमाम हुसैन को मुझसे डबल दिया गया? अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा सुनिएगा नबी पाक की आल से मोहब्बत करने वाले का जवाब। यहाँ पर बाप बेटा नहीं है, यहाँ पर रियाया और एक अमीरुल मोमिनीन गुफ्तगू कर रहा है। और अब अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये जुमले इरशाद फरमाते हैं जो हदीस मुबारका में मौजूद है, जो मैं मफहूमी अंदाज में आपके सामने अर्ज करता हूँ। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि ए बेटे, तुझे पता है कि इनके बाबा का नाम क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। कहा इनके बाबा को अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कहा जाता है। फिर कहा पता है कि तुझे इनके दादा का नाम क्या है? फरमाया कि इनके दादा का नाम ये है। फरमाया पता है तुझे कि इनके नाना का नाम क्या है? कहा कि वो नाना कि जो लजपाल आका है, करीम आका है, ये उनके नाना है। बोला जाता है कि पता है कि इनकी वालिदा कौन है? फरमाया कि उनकी वालिदा खातूने जन्नत है। अरे ये खुद सरदाराने नौजवाने जन्नत है जिनके नाना इमामुल अंबिया है, और तू बराबरी की बात करता है। तो फिर अगर बराबरी की बात करता है तो फिर लेकर आना हसनैन करीमैन जैसा कोई वालिद ही लेकर आ जा, हसनैन करीमैन जैसे कोई दादा नाना लेकर आ जा, हसनैन करीमैन जैसी मां लेकर आ जा। जब तू ये नहीं ला सकता तो फिर इनके बराबरी कैसे कर सकता है? ये एक अमीरुल मोमिनीन अपने शहजादे को जवाब दे रहे हैं। एक मर्तबा की बात है, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं सिर्फ इस बात को उजागर करने के लिए कि लोगों में गलत फैलाया जाता है कि इमामुल अंबिया से, इमामुल अंबिया की आल से, उनकी औलाद से, अहले बैत अतहार से सहाबा मोहब्बत नहीं किया करते थे। मैं आज सिर्फ हजरत उमर का तज़किरा कर रहा हूँ। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठे हुए थे। आज मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको अर्ज करता हूं, आज अगर कोई शख्स आए और आकर कहे इमाम साहब नीचे उतरो, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा यहां पर काम नहीं है, मैं क्या कहूंगा? मुझे बुरा भी लगेगा। हो सकता है शायद मैं उसके जवाब में भी कुछ कलिमात कह दूं, ये तकाजा भी है इंसानी। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा समाअत फरमाइएगा, अमीरुल मोमिनीन है, मिंबर पर जलवागर है, मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, सामने बैठे हुए कोई आम शख्स नहीं थे, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान मौजूद हैं। इसी दरमियान में एक शहजादा दौड़ता हुआ आता है, उस शहजादे को इमाम हुसैन कहा जाता है। वो शहजादा जब दौड़ता हुआ आता है और आकर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये जुमले कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे नाना जान के मिंबर से उतरिए, ये तो मेरे नाना जान का मिंबर है। अमीरुल मोमिनीन ने ये नहीं कहा शहजादे मुझे बयान करने दीजिए, बाद में बात कर लेंगे। नहीं, फौरन मिंबर से नीचे उतरे और मिंबर से नीचे उतरने के बाद अपनी पगड़ी उतारी। पगड़ी उतारने के बाद इमाम हुसैन के कदमों में रखी और कदमों में रखने के बाद ये जुमले कहे कि ए शहजादे, तूने सच कहा, ये मिंबर तो क्या है, ये जो इज्जतें भी मिली हुई है ये भी तेरे नाना का सदका है। ये अमीरुल मोमिनीन के जुमले थे। और कहते हैं कि उमर बिन खत्ताब अहले बैत अतहार से मोहब्बत नहीं करते। एक और वाकया बस अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाऊंगा। हजरत सैयदना इमाम हसन या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से कोई एक हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के शहजादे को ये जुमला कहते हैं कि मेरे
नाना के गुलाम के बेटे, मेरे नाना के गुलाम के बेटे, वक्त के बादशाह के बेटे को कहा जा रहा है। अरे समाज तो करे, आज तो किसी सदर को कह दिया जाए तो वो क्या है, आग बगोला हो जाएगा। वक्त के बादशाह अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला शख्स, जिसे उमर बिन खत्ताब कहा जाता है, इससे क्या है, जानवर भी क्या है, डरा करते थे, क्योंकि उसने इंसाफ ऐसा किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उमर के जो मदीने की सरजमीन पर कोड़ा मारे और कोड़ा मार कर ये कहे कि बता सरजमीन मदीना, क्या तुझ पर उमर ने इंसाफ नहीं किया? वो दिन है, आज का दिन है, 1400 साल का वक्त गुजर चुका है, उस सरजमीन मदीना पर कभी जलजला नहीं आया। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त के बादशाह के बेटे को कहा जा रहा है कि मेरे नाना के गुलाम के बेटे। अब बच्चा बाप के पास आता है, बाप के पास आकर कहता है बाबा जान ऐसा ऐसा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बाबा जान के जो अल्फाज थे, अमीरुल मोमिनीन के जो अल्फाज थे, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि बता बेटा जरा दोहराओ क्या कहा था। कहा कि ये कहा कि नाना के गुलाम के बेटे। अल्लाह अकबर कबीरा। बाबा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब कागज और कलम देते हैं, कहते हैं बेटा जाओ, देर नहीं करो, ये लिखवा कर आ जाओ। अब बेटा परेशान होता है कि ये क्या माजरा है, कहा बस लिखवा कर आ जाओ। लिखवा कर आया जाता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये वसीयत करते हैं कि जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी कब्र में मेरे कफन के साथ ये तख्ती रख देना। मुझे नहीं पता कि कोई मेरा अमल कबूल है कि नहीं है, लेकिन इस घराने से गुलामियत की सर्टिफिकेट मुझे मिल गई है। ये अहले बैत अतहार से मोहब्बत हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किया करते थे। आज सोशल मीडिया पर अब आएगा तूफान बदतमीजी, आएंगे और बैठकर कोई फेसबुक का मुफ्ती बना हुआ होगा, कोई यूट्यूब का मुफ्ती बना हुआ होगा, और न जाने अहले बैत अतहार की मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अतहार का जिक्र कैसे किया जाता है हम कर कर आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि हम दर वालों का जिक्र करें और घर वालों का जिक्र ना करें, क्योंकि हमें डर भी इसी घर से मिला है। हमें ये दर भी जो मिला है अहले बैत से मोहब्बत का ही सिला है। तो मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, खुदारा मैं आजिज़ाना इल्तिजा करता हूँ कि अपनी नशिस्तों को सुथरा कीजिए। अब मुहर्रमुल हराम आने वाले हैं। हम अहले बैत अतहार के जिक्र की वजह से हम माज़ अल्लाह राफिदियों की नशिस्तों में जाकर बैठेंगे, खवारिज की नशिस्तों में जाकर बैठेंगे। क्यों? वहां हमें लंगर मिलेगा, वहां हमें अहले बैत अतहार का जिक्र मिलेगा। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, अहले बैत अतहार का जिक्र जरूर मिलेगा, लेकिन मोहब्बत नहीं मिलेगी। वो मोहब्बत तुम्हें अहले बैत अतहार की मोहब्बत अहलुस सुन्ना व जमा की नशिस्तों में मिलेगी कि कैसे अहले बैत अतहार का जिक्र ये रोकर पीट कर सीने को थपक थपक कर ये अहले बैत अतहार का जिक्र नहीं किया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अहले बैत अतहार का जिक्र करने वाले हैं, लेकिन हाय कर कर नहीं, हम वाह कर कर अहले बैत अतहार का जिक्र करते हैं। हम सीना पीट कर नहीं, सीना चौड़ा कर कर हम अहले बैत अतहार का जिक्र करते हैं। तो मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, खुदारा ये मीडिया से अगर ऐसी बातें आए तो अपने उलमाए किराम से रुजू करें। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अक्ल सलीम की दौलत से माला माल फरमाए, अहले बैत अतहार से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का अदब, उनका एहतराम, उनकी अकीदत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।